बाटला हाउस एनकाउंटर में एक आतंकवादी को उम्र कैद की सज़ा हुई है। कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आतंकवाद पर अगर जीत हासिल करनी है तो निश्चित रूप से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हम तो चाहते और लोग भी चाहते थे कि ये तो फांसी की सज़ा लगो, क्योंकि आतंकवाद को कैसी दया। लेकिन इस नतीजे के बाद अब तो कांग्रेस को जनता से और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके नेताओं के बयान और कामकाज से आतंकवादियों का मनोबल ऊपर उठा और सुरक्षा बलों के मनोबल को उन्होंने नीचा किया। बहादुर पुलिस अफसर मोहनचंद शर्मा के शहादत पर दिग्विजय सिंह ने सवालिया निशान उठाए, और ये सब दोषी पाए जाने के बाद भी वो लगातार यही बात कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है, दिग्विजय सिंह ये सीधे तरीके से सोनिया जी और राहुल की आवाज़ है, और इसलिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है और जीतनी है तो उसके लिए कड़ाई से कानून का अमल होना चाहिए, और सुरक्षा बलों को जो भी मोहलत चाहिए वो देकर इस आतंकवाद को पूरा गाड़ देना चाहिए। ये देश के खिलाफ का एक युद्ध है, और इस युद्ध को जीतने का एक ही रास्ता है कि आतंकवाद को परास्त करना। बीजेपी वेलकम्स the court verdict which has sentenced the terrorist of the Batla House encounter and who killed the brave police official Mohanchand Sharma. He has been awarded life sentence. Many people wanted to see terrorists hanged because ultimately it's a war against India. The crimes committed by terrorists are not normal crimes. They are extraordinary crimes. And that's why, as it is a war against India, we must be more tough against those. And on this occasion of the verdict, we demand that Congress should apologize the nation for demoralizing the police force, raising doubts about the martyrdom of Mohanchand Sharma, and also raising and emboldening the terrorists because their leaders visited the terror suspect. And we cannot forget that the foreign minister Salman Khurshid had said that when he narrated the Batla House encounter story to Sonia Gandhi, she cried. She cried for those apprehended on account of. That was the version given by Salman Khurshid. And that's why Congress must apologize. People want Telangana, a full statehood with Hyderabad as the capital and Hyderabad as integral part of Telangana. So, we don't know what Congress is going to take decision, but it dilly-dallied for not only 9 years. It has betrayed Telangana people for 56 long years. Brave people of Telangana have fought their battle for justice for 56 years on street. And after such a long wait, and after continuous betrayal, nobody believes that Congress will deliver
full Telangana as people are demanding. So we reiterate our demand, and then if at all they want to make any decision, don't make it only announcement. We want immediate bill to be brought in the parliament in monsoon session, so that we have already committed our support. The bill will get required sanction of parliament. But to that end, because government has earlier also done an announcement on 9 December 2009 that it has started the process of formation of separate state of Telangana, but that never became the reality. Last 4 years they have betrayed, and now Telangana is not ready for yet another announcement only. We want action. तेलंगाना पृथक राज्य बनना चाहिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई कर रहा है, मांग कर रहा है। और तेलंगाना की बहादुर जनता ने 56 साल लड़ाई लड़ी है और 56 साल कांग्रेस ने उनके साथ धोखा किया है। और इसलिए आज अगर उनको कुछ घोषणा करनी है तो घोषणा पूरे तेलंगाना राज्य के निर्माण की घोषणा करे। हैदराबाद जिसकी राजधानी हो और हैदराबाद उसका हिस्सा हो। साथ ही साथ हम चाहेंगे, क्योंकि 9 दिसंबर 2009 में भी उन्होंने एक तरह वादा किया था और कहा था कि सरकार ने तय किया है कि पृथक तेलंगाना राज्य के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है, लेकिन 3.5 साल सरकार ने फिर से धोखा दिया है लोगों को। और इसलिए आज अगर करना है तो घोषणा नहीं, मानसून सेशन में बिल लाने की बात करो, हम उसको समर्थन देंगे। अब हमें चाहिए पूरा तेलंगाना, और तेलंगाना जल्दी चाहिए, और इसके लिए हमारी मांग और लड़ाई जारी रहेगी जब तक तेलंगाना का सपना हासिल नहीं होता। सर, बीजेपी एमपी शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कुछ कहा है वो पार्टी लाइन पर है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे पहले ही विदर्भ का और तेलंगाना का समर्थन पहले से किया है, और इसलिए 2 विषयों में हमारी पूरी सार्थक भूमिका पहले से रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान पार्टी लाइन पर है। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, इसका जवाब यहाँ से हमें देने की जरूरत नहीं है। हमारे बिहार के नेता उसका जवाब देंगे। I think Bihar unit is capable of reacting on any such reactions. We need not waste our time. शत्रुघ्न सिन्हा has said that वो मैंने सुना नीतीश कुमार is a PM material. What do you have to say about? नहीं, इसीलिए मैंने कहा उनके बयान का जवाब हमारे बिहारी यूनिट देगा, हमें यहाँ से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट एडीआर की जो रिपोर्ट है, कल उसमें कहा गया कि राजनीति में काफी तेजी से बढ़ रहा है 2004 के बाद। बीजेपी में क्या करें कि आपकी पार्टी में कई राजनीतिक में आप इस पार्टी से कैसे बताइएगा? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ लगातार लड़ रही है, और चुनाव सुधार ऐसे सार्थक हो कोई क्रिमिनल लोक प्रतिनिधि नहीं बन सके, यह हमारी मांग है। और इसलिए हमने सार्थक सुझाव भी दिए हैं कि जिसके खिलाफ 2 चार्जेस हीनियस क्राइम में फ्रेम हुए हैं, उसको पाबंदी करनी चाहिए। और जो राजनीतिक आंदोलन से जुड़ी केसेस है उसको अलग करके, जो गंभीर अपराध है, जो लोगों के मांगों पर लड़ाई नहीं है, जो सीधे सीधे गुनाह है, अपराध है, उनको अलग श्रेणी में रखा जाए। वो श्रेणी कानून में तैयार करे
यह हमारी मांग है। द बीजेपी हैज ऑलवेज fought for decriminalization of politics, and to that end we want comprehensive electoral reforms, and therefore BJP has given many valuable suggestions, one of which is that a person who is against whom charges are framed in 2 different cases of heinous crimes should not be allowed to contest the election at any level. And that's the BJP stand. Let Election Commission and government take a view on that, because we want cleansing of politics. But at the same time, let me also say that today Criminal Procedure Code doesn't discriminate between the heinous crime and the crimes related to political agitations. Say against price rise, say against injustice to farmers, say against, so we put up agitation and the same law applies. So there should be a change made in the CRPC also to mark heinous crime separate from the political agitations. राहुल गांधी ने कल गुजरात गए थे। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी करने पर चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? मैंने मेरी बात कही है। कल राहुल ने कहा है कि जब एनडीए की सरकार थी तब एनडीए की सरकार ने तेलंगाना सेपरेट तेलंगाना का विरोध किया था। नहीं विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में अपने एनडीए के एजेंडा में, मैनिफेस्टो में हमने 3 राज्यों का निर्माण का वादा किया था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, वो हमने बनाए। कांग्रेस ने 2004 में तेलंगाना निर्माण का वादा किया था, 2014 आने को आया, 9 साल उसके साथ उन्होंने गद्दारी की है। तो हमारा रिकॉर्ड साफ है, उनका प्रॉब्लम। कल राहुल गांधी गुजरात गए थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हाँ, तेलंगाना। On the issue of Telangana, what will happen to Hyderabad? Hyderabad will remain as a like a union territory, Chandigarh, or it will be I will not speculate. I have given my opinion as far as, because we think Hyderabad is an integral part of Telangana, and so whatever government will announce, then only we will give our reaction. कल राहुल गांधी गुजरात गए थे, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना रही है और वो उनकी नाकामियों का जो खेल है वो सबके सामने लाएंगे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी की टिप्पणी गुजरात के बारे में गुजरात में जाकर मुझे हंसी आई, क्योंकि गुजरात की जनता को अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो कांग्रेस बना रही है, और गुजरात की जनता तो समझदार है, जैसी देश की भी जनता समझदार है। वो इस बार परिवर्तन करके रहेगी, और गुजरात में तो तीसरी बार हमें उन्होंने फिर से मौका दिया, विश्वास जताया है। तो एक बात साफ हो गई है कि वहाँ कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, उसको बचाने की लड़ाई राहुल जी कर रहे हैं। एक मीडिया चैनल ने खबर दी कि बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव पर शोभा सुंदर ने सोलर चैनल इस्तीफा है, और शोभा सुंदर ने कहा कि उस चैनल की एग्जीक्यूटिव एडिटर को, उस रिपोर्टर को मैं थप्पड़ मारी। क्या ये सही है? नहीं, this is absolutely, solar scam is a scam where the fingers are pointed to the chief minister, and as we know that the whole CM's office has either to go to jail or to resign or to be expelled. So the office is now actually empty. This is the direct evidence of the complicity of the CM's office in the solar scam, and that's why we have asked resignation of the CM. भारतीय जनता पार्टीने सातत्याने तेलंगणा आणि विदर्भाच्या स्वतंत्र राज्याचा पुरस्कार केला, आणि तेलंगणाचा आत्ता मुद्दा ऐरणीवर आहे, आणि त्यामुळे तेलंगणाला निश्चितपणाने ताबडतोब त्याची स्थापना झाली पाहिजे। आत्तापर्यंत विश्वासघात केला काँग्रेसने 56 वर्ष, 2004च्या जाहीरनाम्यामध्ये वचन देऊनही त्याचं पालन केलं नाही, आणि म्हणून हैदराबाद सह
तेलंगणा पूर्ण झालं पाहिजे आणि तसंच झालं पाहिजे यासाठी आमची लढाई ते होईपर्यंत चालू आहे.